अच्छा, नाउ लिसन टू दिस थिंग. दिस क्वेश्चन सेज इन द फिगर, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है एबीसी इज द ट्राइंगल. ठीक है, आपके पास में एबीसी एक ट्राइंगल है इन विच एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो एडी इज द बाइसेक्टर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्टर? अब डिवाइड्स द एंगल. अगर मैं डिवाइड्स द एंगल बोलूं तो कैन आई से कि जो एंगल बी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल सी ए डी. करेक्ट? if AD is the bisector, can I say कि angle BAD will be equal to angle CAD? Yes? Correct. तो आपको एक चीज ये मिल गई. क्लियर? दूसरी चीज कहता है कि if AD is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC. अगर कोई चीज perpendicular होती है तो क्या होता है? The angle becomes 90 degree. Correct? It means angle ADB equal angle ADC each 90 degree. Have you got it? अच्छा, then show that triangle ABC is isosceles. तो कहता है ये सब हमें अगर पता है तो then show that this complete triangle ABC is isosceles. Now for any triangle to be isosceles, what is required? एक triangle, हाँ, two sides equal. It means in case this triangle ABC is isosceles, what I need to prove? टू साइड्स इक्वल. कौन कौन सी साइड इक्वल मैं अगर प्रूव कर दूं तो मेरा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा. ए बी इक्वल ए सी कर दूं तो हो जाएगा. करेक्ट? डू यू आर यू श्योर कि अगर मैं इस ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू ए सी कर दूं देन द ट्रायंगल विल बिकम आइसोसेलेस. करेक्ट? So for this thing, can I do one thing? I can make these two triangles what? Congruent. Congruent का मतलब होता है completely identical. Prove them that they are completely identical. And for proving them completely identical, we are having 4 rules. Okay, got it? So the thing is, now can I write in triangle ADB and in triangle ADC angle BAD equal angle CAD? Yes ma'am. AD कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में. AD is common and angle ADB equal angle ADC each 90 degree. Now in case you have to say कि which congruency rule will apply? Tell me. Side angle side. ए साइड एंगल साइड नहीं, एंगल साइड एंगल. ए एस ए साइड इज इंक्लूडेड ना. ए एस ए. आई टेल यू व्हाट इज ए एस ए. ठीक है, ए एस ए होगी. देन यू कैन से कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ए एस ए नहीं समझ में आया बेटे? जब हमने ए एस ए बोला ना तो समझ देखो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पार्ट्स इक्वल बट लेटर ऑन यू आर नॉट एबल टू गेट के हाउ दीज पार्ट्स आई हैव टू जॉइन एंड मेक द रूल. है ना? रूल नहीं समझ में आ रहा. अब देखो जब भी तुम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हो ना, यू गो इन ओनली वन ट्राइंगल. डू नॉट लुक एट बोथ द ट्राइंगल्स पैरेलली. जस्ट गो इन वन ट्राइंगल and see in which manner you have taken the parts of the triangle. जैसे ये देखो ये एंगल आया, फिर AD was the side, this is side, and फिर ये वाला एंगल आया जो 90 डिग्री था. So what is the rule? Angle, side, angle. ASA congruency rule हो गया. Have you got it? अब जब ASA congruency rule से these two triangles have become congruent, they have become identical, I can say कि AB equal to AC, CPCT. ठीक है, फिर you go in complete triangle ABC. In complete triangle ABC, AB equal to AC, therefore the triangle is isosceles. ठीक है, so how will you write the answer? बोलो, how will you write the answer? I will help you writing the answer. पहले कैसे लिखोगे? इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC एंगल
DAB या BAD लिख दो, you just write angle BAD equal angle CAD because AD is bisector of angle A. AD is bisector of angle A. फिर you will write AD equal to AD, ये दोनों क्या हैं? कॉमन है, both are कॉमन. और क्या लिख रखा है? एंगल ADB इक्वल एंगल ADC each 90 degree. Do you agree? Each 90 degree. Therefore, triangle ADB congruent triangle ADC by which rule? By Angle side. angle side angle congruency rule. अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? Therefore AB equal AC CPCT, corresponding parts of congruent triangles CPCT. Now मतलब यहाँ से हमारी स्टोरी चेंज हो रही है. Now in triangle ABC, AB equal to AC, therefore triangle ABC is an isosceles triangle. ठीक है? That's it. I'm writing the next question. Try to prove it yourself. थोड़ा सा कोशिश करो, देखो कुछ आता है कि नहीं. नहीं आएगा तो I'll help you, but first you try. मैं नहीं तो तुम्हें एक बार orally करवा देती हूँ. I'll just teach you orally. Listen to me for 1 minute, then you may continue writing. ठीक है? 1 मिनट के लिए सुन लो, because अभी मैं इसको लिखूंगी नहीं. I will give you time to write it in your words. ठीक है? I just want to see whether you are comfortable writing by yourself or not. Okay? इसमें क्या कहता है कि आपके पास में एक फिगर है. अब देखो ये फिगर देखने में पैरेललोग्राम है, but they have not mentioned that it is a parallelogram. Have they mentioned it is a parallelogram? No. Although the figure is looking like parallelogram, but they have not mentioned कि it is parallelogram. Clear? उसने क्या बोला है कि जो AD है that is equal to BC. How you come to know? क्योंकि इस दोनों के ऊपर हाइफन हाइफन बना हुआ है. Do you agree? आपको मालूम है ना, those parts are equal जिसके ऊपर डैश डैश होती है. और अगर इन दोनों के ऊपर में एरो है in the same direction means the sides are parallel. I have already taught you what is the meaning of these symbols. Clear? So they have told कि भैया AD is equal to BC है and AD जो वो parallel है BC के. Nothing else है. And they are asking क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि AB will be equal to DC. There is a lots of difference between equal and parallel. Do you agree? अगर मेरे पास में दो साइड्स इक्वल होती है तो मतलब उनकी लेंथ इक्वल है, लेकिन अगर दो साइड्स ऐसी हैं तो दे कुड बी पैरेलल. In this case these are parallel, in this case they are equal. Do you agree? यहाँ पर पैरेलल और इक्वल दोनों हैं. पैरेलल के लिए it is not required that the sides should be equal. Parallel could be like one small side and one long side could be parallel, but they cannot be equal. Clear? तो ये clear हो गया. अब अगर मुझे ये दोनों sides को equal prove करना है, so I need to prove the congruency of अच्छा देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे आपको ये भी नहीं दे रखा कि which triangles you need to prove congruent. Have they given you anything like जैसे previous question में show that, है ना? यहाँ पर भी वैसे उन्होंने कुछ congruency दिया नहीं था कि which triangles we need to prove congruent. Do you agree? समझ में आ रही है? तो यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ. You have to choose your triangles yourself and then you have to write. जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ DAC तो ये कौन सा बनेगा? BCA.
आर यू गेटिंग? अगर मैं फर्स्ट ट्राइंगल को मैं अगर इसका नाम देती हूँ DAC, तो ये बनेगा BCA। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में पहले भी बता चुकी हूँ, हमें टॉट यू ना तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अगर मैं इन ट्राइंगल की बात करती हूँ, मैं आंसर में मैं नाम लिख देती हूँ ट्राइंगल्स का, सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। इन ट्राइंगल DAC, देखो DAC, अगर मैं यहाँ से नीचे जाकर ऊपर जा रही हूँ तो इधर ऊपर जाके नीचे आना है। गॉट इट? मैं ऐसे इसमें कैसे गई, मैंने इसमें ऐसे करके नाम लिखा और इसमें मैं ऐसे करके नाम लिखूंगी। इफ आई एम राइटिंग द नेम्स लाइक दिस, देन आई विल राइट द नेम लाइक दिस। हैव यू गॉट इट? तो इन ट्राइंगल DAC एंड ट्राइंगल BCA, अब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों ट्राइंगल में एक तो उसने दिया है कि AD इज इक्वल टू BC, करेक्ट? अच्छा, अब ये जब दो साइड्स पैरेलल हो गए एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, कैन आई से कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे? यस और नो? पैरेलल साइड्स में अगर एक ट्रांसवर्सल निकलती है तो टू एंगल्स विल बिकम इक्वल, यस और नो? व्हाट इज द रीजन? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, isn't they are looking like alternate interior angles? तो ये दोनों alternate interior angles है। एक तो ये हो गया, तो आपको एक मिली ये वाली साइड, एक ये दोनों एंगल, और AC AC कॉमन है, कॉमन है दोनों में AC AC। कैन आई से द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ऑफ विच रूल? बताओ, साइड एंगल साइड, तो कौन सा रूल लगा? SAS, है ना? कैन आई से SAS रूल इज देयर। उसके बाद में आई विल से कि भैया ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बिकॉज ऑफ SAS, एंड नाउ देयरफॉर AB इक्वल टू DC या DC इक्वल टू AB, CP CD, दैट्स इट, दिस इज हाउ। तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट योर आंसर्स एंड जस्ट चेक इट। तो इसका नाम क्या होगा? जैसे इसका नाम लिखोगे DEF, तो इसका क्या नाम लिखोगे? PNM, ठीक है? अच्छा, अभी पिछले वाले का आंसर मैं लिख रही हूँ, अंडरस्टैंड? एंड आप दोज हु हैव डन दिस थिंग दे मे ट्राई विद दिस थिंग, ठीक है? अब अगर इसको मैं लिखूंगी, सो व्हाट वुड बी द आंसर? इन ट्राइंगल DAC एंड BCA व्हाट इट इज गिवन? AD इक्वल टू BC। देखो ये बेटा, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है AD इक्वल टू BC, दिया हुआ है ना? सो यू कैन जस्ट कॉपी फ्रॉम द। अब समझो यहाँ पर ये दिया नहीं है कि एंगल DAC इक्वल एंगल यू नो BCA, बट यू हैव टू प्रूव। कैसे? एज AD इज पैरेलल टू BC, ये तो दिया है ना कि दीज आर पैरेलल, and AC is transversal, AC is transversal, therefore angle DAC is equal angle BCA by which rule? Alternate interior angles, correct? And AC is equal to AC common, therefore triangle DAC is congruent triangle BCA by SAS congruency rule, ठीक है? तो उसने पूछा क्या AB इक्वल टू DC होगा? यस, AB इक्वल टू DC, इसकी वजह से CPCP। अच्छा, अब ये वाला जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई हैव जस्ट टोल्ड यू टू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी। आप क्या देखोगे? इसके पहले कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस देखो। कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस होता है जैसे D के ऊपर कोई भी एंगल D and P, तो D and P आर द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, ठीक है? दिस इज द सिंबल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग। फिर E के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? N। इक्वल मत लिखना, कॉरेस्पॉन्डिंग है वो, F is M, एंड F इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू M. M। तो अब ट्राइंगल क्या बना? इन ट्राइंगल DEF, देख लो, फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर, फिर सेकंड लेटर सेकंड लेटर सेकंड लेटर,
नाउ प्रूव कॉन्ग्रुएंसी। तो उसको अगर देखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एंगल ई इक्वल एंगल एन गिवन है, देन ई एफ इक्वल एन एम, ये भी गिवन है, और एंगल एफ इक्वल एंगल एम, ये भी गिवन है। इसलिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ एंगल साइड एंगल रूल। So that's what we need to do. बस ये ऐसे कॉन्ग्रुएंट। But we are with DFE equals to P एन and एम, M. हाँ So that is also same rule, right?